کہ جب آپ مسلک کی بنیاد پہ کوئی مدرسہ قائم کریں گے تو وہ مسلک کی ہی ترویج کرے گا. وہ لوگ جو کہتے تھے دنیا الگ ہے دین الگ ہے، وہ دنیائی تعلیم دیتے ہمارے بچوں کو، اور ہم کہتے ہیں دنیا اور دین ایک ساتھ ہے، ہم ان کو دنیائی تعلیم نہیں دے پاتے، تو پھر اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں ہمارے دشمن. جب وہ کر سکتے ہیں ہمارے پیسے کے ذریعے سے، ہماری زمینوں میں ہمارے بچوں پہ دنیائی تعلیم کے ذریعے سے دین کا کام، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے کوئی ایسا انظام؟ آج کے زمانے میں فلسفہ سے زیادہ سائنس کی اہمیت. وہ مذہب کا، وہ فلسفے کا جواب مذہب سے دے رہا ہے، وہ سائنس کا جواب مذہب سے دے رہا ہے. تو اس لیے نہ سائنس والے ماننے کے تیار نہ فلسفہ والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ علمی شخصیات کے انٹرویوز کے پلیٹ فارم سے محمد حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آج کے انٹرویو میں آپ کو بہت معلومات مدارس کے نظام تعلیم کے حوالے سے، اور مدارس کو کیسے ریفارم کیا جا سکتا ہے، اس کے نظام کو کیسے مستقبل میں ایسے بہتر کیا جا سکتا ہے کہ اس سے گریجویٹ ہونے والے، فارغ التحصیل ہونے والا ہر طالب علم اور ہر فاضل وہ ہر میدان کے اندر امت کا رہنما بن سکے. اس میں نہ دنیاوی یعنی عصری علوم کی کمی ہو اور نہ ہی دینی علوم کی کمی ہو. یہ جو بیسک تقسیم کر دی گئی ہے کہ دینی علوم اور دنیاوی علوم، حالانکہ یہ تقسیم ہونی نہیں چاہیے، بلکہ جو تقسیم اصل ہونی چاہیے وہ علم نافع اور غیر نافع کی ہونی چاہیے. تو آج کی جو گفتگو ہوگی انشاءاللہ وہ ڈاکٹر حمید اللہ مرازی صاحب، جو سری نگر سے بلانگ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہوگی. اور میں ان کو بلانے سے پہلے ان کا مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر انشاءاللہ ڈیٹیل میں ان کے جو کام ہوں گے وہ آپ کے سامنے آئیں گے. ڈاکٹر صاحب سری نگر سے تعلق رکھتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب کا جو ماسٹر ہے، اس سے پہلے اگر میں بیچلر کی بات کروں تو ڈاکٹر صاحب کا بیچلر جو ہے وہ سنی تھیالوجی کے اوپر ہے، اور سبجیکٹ تھا آپ کا تفسیر حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ کے اوپر آپ کا یہ کام ہے. اس طریقے سے آپ کا جو ماسٹر ہے، اچھا، جو آپ کا بیچلر مکمل ہوا ہے وہ 1982 میں، پھر ماسٹر آپ نے اس کے بعد فوری طور پر سٹارٹ کیا ہے، اور وہ بھی اسی ٹاپک کے اوپر ہے. اور پی ایچ ڈی ڈاکٹر صاحب کی مکمل ہوتی ہے جا کر 1996 میں، اور فلاسفی آف الغزالی اینڈ اٹس امپیکٹ آن ویسٹرن فلاسفرز، اس کی متعلق ڈاکٹر صاحب کا ایک بہترین ماشاءاللہ کام ہے، اور پی ایچ ڈی کا آپ کا ٹاپک بھی یہ رہا. مختلف زبانوں کے اوپر عبور رکھتے ہیں الحمدللہ، اور آپ انگلش زبان ایسے بولتے ہیں جیسے کہ اپنی مادری زبان کی طرح بول رہے ہیں. عربک زبان کے اوپر بھی اور فارسی زبان کے اوپر بھی آپ کو عبور حاصل ہے، اور ایک بہت بڑا علمی بیک گراؤنڈ رکھنے والے ہیں آپ کے. اگر ہم مختلف جو ذمہ داریاں ہیں اور مختلف جو منصب ہیں ان کی اگر بات کریں تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ یونیورسٹی آف کشمیر کے اندر ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف ریلیجیس اسٹڈیز ہیں، اسکول آف سوشل سائنسز، اور ڈین ہیں آپ اسکول آف میڈیا اسٹڈیز کے. اس طریقے سے اسلامک اسٹڈیز لیکچر ریڈ ایسوسیٹ پروفیسر ہیں آپ اسی یونیورسٹی کے اندر. اس کے علاوہ آپ کی مختلف پوسٹ کو اگر ہم دیکھیں تو اسی یونیورسٹی میں آپ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹس بھی ہیں، چیئرمین اسٹڈیز آف مختلف بورڈز آف اسٹڈیز کے چیئرمین بھی ہیں، اور اس طریقے سے آپ ڈین ہیں فیکلٹیز کے. تو الحمدللہ ایک ایسی شخصیت کے جس میں ہر صلاحیت موجود ہے، اور مختلف ممالک کے اندر آپ کو ایز اے گیسٹ مختلف انٹرنیشنل کانفرنسز کے اندر مدعو کیا گیا ہے. اور اسی سلسلے میں اس وقت آپ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا کے جو ڈپارٹمنٹ ہے اسٹیک یعنی اسلامک تھاٹ اینڈ سویلائزیشن، اس کی انٹرنیشنل کانفرنس میں مدعو کیے گئے ہیں. اور اس سے پہلے آپ بہت ساری کانفرنسز میں، جیسے ترکی ہے، سعودی عربیہ، بنگلہ دیش، انڈیا، مختلف کانفرنسز کے اندر بھی شرکت کر چکے ہیں. آپ نے بہت سارے سلور میڈلز بھی حاصل کیے ہیں، اور بہت سارے جو اپریسیشن کے سرٹیفکیٹس ہیں، ایوارڈز ہیں، وہ بھی آپ نے مختلف ممالک سے حاصل کیے ہوئے ہیں. تقریباً 70 آپ کی پبلیکیشنز ہیں، اور تقریباً 25 سے زائد آپ کے آرٹیکلز مختلف جرنلز کے اندر چھپ چکے ہیں، اور آپ کی درجنوں بکس بالخصوص ریلیجیس اسٹڈیز کے اوپر موجود ہیں. تو یہ ہے کچھ مختلف کام اور امور جو ڈاکٹر صاحب کے زندگی میں الحمدللہ ہوئے ہیں، اور ابھی تک وہ جاری ہیں.
تو ہم بڑھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف، اور آج کا جو ٹاپک ہوگا مدارس سے متعلق، تو انشاءاللہ ہم ڈاکٹر صاحب سے سیر حاصل اس حوالے سے گفتگو کریں گے، رہنمائی چاہیں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ بہت مصروف ہونے کے باوجود مدثر ڈاٹ پی کے لیے آپ نے وقت دیا ہے، آپ کا بہت شکریہ۔ شکریہ آپ کا۔ جزاکم اللہ خیر۔ ڈاکٹر صاحب کچھ تعارف تو جو ہم جانتے تھے آپ سے متعلق تو وہ تو رکھا ہے، لیکن پلیز آپ اپنا مزید آبائی علاقہ اور اس کے علاوہ جو علمی آپ کا ایک وقت گزرا ہے اس سے متعلق اگر کچھ اور تفصیل سے ذکر کرنا چاہیں ناظرین کے سامنے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب، میں پیدا ہوا تھا دوابگہ رفیع آباد سوپور کشمیر 1958 میں۔ تو وہیں میری تعلیم ہوئی ہے، وہاں کے لوکل اسکول میں۔ اس کے بعد میں سوپور کالج میں نے بی اے کیا، بیچلرز کیا وہاں سے۔ اس کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تھیولوجی، جیسے آپ نے فرمایا، تھیولوجی میں نے بیچلرز بھی کیا اور ماسٹرز بھی کیا۔ اس کے علاوہ مسلم فلاسفی میں نے وہاں سے ماسٹرز کیا۔ پھر وہاں سے میں چلا گیا جواہر لال نہرو یونیورسٹی، جو ہندوستان کی بہت ہی مشہور یونیورسٹی ہے، اور فلسفہ اور تصوف اور باقی چیزوں پر وہاں کام ہوتا ہے، تحقیقی کام، اور بھی سائنس پہ بھی اچھا خاصا کام ہو رہا ہے۔ تو وہاں پر میں پی ایچ ڈی کے لیے گیا۔ تو وہاں میں نے موجودہ فلسفہ جو آج کے زمانے کا جدید فلسفہ ہے اس پہ میں نے کام کرنا شروع کیا، برٹن رسل اور ڈیوڈ ہیوم، ان کی تھیوری آف پرسیپشن پہ۔ پھر وہی ایک ادارہ ہے، اس کو کہتے تھے انڈین انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز، IIS۔ تو وہ اصل میں اب پارٹ بن گیا ہے ہمدرد یونیورسٹی کا، جامعہ ہمدرد کا۔ تو وہاں پر میں ایک پروجیکٹ کر رہا تھا، امام غزالی اور مغربی فکر۔ تو میں نے وہ پروجیکٹ وہاں سبمٹ کیا، ریسرچ پروجیکٹ۔ اس کے بعد پھر میں کشمیر یونیورسٹی آیا، تو میں وہاں میرا تقرر ہو گیا بحیثیت لیکچرر۔ اور اس کے بعد میں پھر وہاں تقریباً 27 سال تک میں نے وہاں کام کیا، ایز ہیڈ بھی کام کیا اور ڈائریکٹر بھی کام کیا شاہ ہمدان انسٹیٹیوٹ آف اسلامک اسٹڈیز۔ پھر اس کے بعد میں سینٹرل یونیورسٹی چلا گیا، تو وہاں میں ڈین بن گیا سوشل سائنس کا، اور ہیڈ بن گیا اسلامک اسٹڈیز کا بھی اور ریلیجس اسٹڈیز کا بھی، اور میڈیا اسٹڈیز کا بھی ڈین میں تھا وہاں۔ اس کے بعد میں اسلامی یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، وہ ہمارے کشمیر میں ایک یونیورسٹی ہے، وہاں کا میں ڈائریکٹر بنا، انٹرنیشنل سینٹر فار اسپریچول اسٹڈیز۔ تو اس کے بعد یہاں میرا تقرر ہوا انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ آف اسلامک تھاٹ اینڈ سویلائزیشن، اسٹیک، جہاں پر آپ بھی پڑھتے ہیں، تو آپ بھی ریسرچ کر رہے ہیں، اور باقی بہت سارے ہمارے طلباء طالبات برصغیر کے تو یہاں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور پوری دنیا سے۔ تو وہاں میرا تقرر ہوا بحیثیت وزٹنگ ریسرچر۔ تو یہ میرا مختصر تعارف ہے۔ اور جہاں تک علماء کرام کے ساتھ تعلق کی نسبت ہے، تو علی گڑھ میں میرے اساتذہ کرام دیوبند سے وابستہ تھے، اور اس میں زین الساجدین صاحب تھے، اور مولانا تقی امینی صاحب، جو مدرسہ امینیہ کے پروڈکٹ ہے، بہت مشہور شخصیت، تو میرے استاد رہے ہیں، ہمیں تفسیر پڑھاتے تھے، ان سے بڑا تعلق رہا ہے۔ اسی طرح سے علماء دیوبند اور علماء جو احناف اور بھی باقی علماء کرام، تمام مکاتب کے میں نے فرق نہیں کیا ہے، میں نے سب سے استفادہ کیا، تو ان سے بھی ایک اچھا خاصا تعلق رہا ہے۔ اور درسن میں نے ان کے پاس کتابیں پڑھی ہے، کشمیر میں خاص طور سے غلام محمد شاہ صاحب مرحوم، وہ میرے استاد تھے، ان کے پاس میں باقاعدہ درسن قدوری میں نے ان کے پاس پڑھی ہے، اصول شاسی پڑھی ان کے پاس میں نے، اور صرف نحو بھی پڑھا میں نے، اصول مطلب سب چیزیں۔ تو اس طرح سے علماء کے ساتھ بھی تعلق رہا ہے، اور دانشوروں کے ساتھ بھی رہا، تو یہ میرا اس طرح سے ایک مختصر سا تعارف ہے۔ ماشاء اللہ۔ ڈاکٹر صاحب مدارس کے حوالے سے جیسے آپ نے اپنے تعلق کی بات کی اور اہل مدارس سے تعلق کی بات کی، تو مدارس کے نظام تعلیم اور مدارس کے اندر کے جو حالات ہوتے ہیں، تو کیا اس کو آپ ڈیپلی اس حوالے سے کوئی جانتے ہیں یا اس حوالے سے کوئی آپ کا کام ہو؟ میں نے مدارس کو بہت نزدیک سے دیکھا ہے، کشمیر میں بھی، اور میں مدارس کا میں نے دورہ بھی کیا ہے اچھا خاصا، اور کچھ تحقیق بھی کروائی ہم نے اپنے طلباء کے ذریعے سے، طالبات کے ذریعے سے۔ تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ خلوص، اخلاص تو بہت زیادہ ہے وہاں، اللہ کی رضا کے لیے سب لوگ وہاں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور مقصد وہی ہوتا ہے۔ لیکن تھوڑا سا جو حالات کا تقاضا ہے، کیونکہ دین دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے آیا ہے، اور جب ہم دینی تعلیم کے ذریعے سے اپنی مسئولیات کا جو ہے تذکرہ کریں گے، تو بتائیں گے کہ بھائی دنیا کو ٹھیک کرنا ہے۔ دنیا کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں دنیا کے بارے میں معلومات بھی ہونی چاہیے، اور پھر یہ کہ علم جو ہے وہ زمانے کے ساتھ بدلتا رہتا ہے،
ये ठीक है, अकायद तो नहीं बदलेंगे, लेकिन इल्म की ताबीरात बदलती है, जैसे हम जानते हैं। और जिसको आप इज्तिहाद कहिए, जिसको आप तजदीद कहिए, जिसको आप और भी कोई नाम दे दीजिए। तो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि जिस तरह से हमारे दूसरे जो मज़ाहिब, क्योंकि मैं तकाबुल इदियान का भी तालिब इल्म रहा हूँ, और मैंने दूसरे मज़ाहिब के उलमा को भी नज़दीक से देखा है, या ईसाई उलमा, हिंदू उलमा, सिख उलमा, जो अपने मज़हब के उलमा क्लर्क्स वगैरह हैं। और फिर मुझे अमेरिका जाने का भी मौका मिला है, वहाँ से नज़दीक से मैंने देखा उनको, जिस तरह से वो अपने ज़माने के हालात से बाखबर है, वहाँ के उलमा जो उनके हैं। तो मैंने देखा कि हमारे उलमा इतने बाखबर नहीं। दूसरी बात, जो जहाँ तक सिलेबस का ताल्लुक है या हमारा निसाब का ताल्लुक है, उसमें भी वो जिद्दत नहीं है जो होनी चाहिए थी। तजदीद होनी चाहिए, मैं जिद्दत तो नहीं कहूँगा, तजदीद में कहना चाहूँगा। तो जिसका गिला जो है शुबली नामानी रहमतुल्लाह ने भी किया है, और अब्बास नदवी साहब ने भी किया है, और बाकी लोग ने भी किया है। तो वो एक चीज़ मुझे लगी, लेकिन हालांकि वहाँ पर काम करने के इतने इम्कानात हैं कि उसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। अच्छा खासा काम कर सकते हैं, इखलास में कोई इखलास की ज़रूरत है। तो इसलिए मैंने वो जो अंदर के हालात देखे, उससे मैं ज़्यादा मुतमईन नहीं था। और मैं इकबाल के उस शेर को हमेशा कोट करता हूँ, उठाओ मैं मदरसो खानका से नमनाक, न जिंदगी न मुरवत न निगाह। अक्सर बेशतर मैंने ये हाल देखा। तो इसलिए वो मेरा जो ज़ाती मुशाहदा जो है, और मेरे जो दोस्तों ने काम किया उस पर, मेरे तलबा ने जो इस पर रिसर्च किया, तो उनका भी यही तासुर रहा है। और मेरा ज़ाती भी यही तासुर है कि जिस तरह का हमें अपने ज़माने के लिहाज से सिलेबस बनाना चाहिए था, अपने मदारिस को इक्विप करना चाहिए था, नए नए जो तरीके हैं, मनाहिज हैं, उससे हम नहीं कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब एक चीज़ है कि इस वक्त जो आपकी गुफ्तगू है या आप जैसे और मुफक्किरीन की गुफ्तगू है, तो यकीनी तौर पर मदारस के इस्लाह और हमदर्दी के लिए है कि वहाँ से निकलने वाले जो हमारे कायद हैं, ज़ाहिर अम्बिया के वारिस हैं। तो अम्बिया के वारिस होने की हैसियत से उनको ओवरऑल मुकम्मल पूरी दुनिया के ऊपर छा जाना चाहिए, और उलूम उनके पास ऐसे हों कि कहीं पे भी उनको गैप महसूस ना हो, कमी महसूस ना हो उम्मत की रहनुमाई के हवाले से। तो यही आपकी सोच भी है। मेरा सवाल ये है कि आपने फरमाया कि उलमा के बारे में जब मैंने बाहर जाकर दुनिया को देखा तो उलमा बहुत सारी चीज़ों से बाखबर नहीं थे। तो क्या इस पे ज़रा रोशनी डाल सकते हैं कि ये उलमा जो है वो बाखबर क्यों नहीं थे? क्या कोई लैंग्वेज का प्रॉब्लम था या नॉलेज की कमी थी? वो क्या था? देखिए, असल में प्रॉब्लम यह है कि अगर हम देखेंगे हमारा जो पहले निज़ाम था, चाहे दरस निज़ामिया हो या बाकी जो निज़ाम, मुल्क ने जो सिलसिला शुरू किया था वहाँ पर बगदाद वगैरह में, इमाम गजाली के ज़माने में, और उसके बाद भी, उससे पहले भी, तो वहाँ पर जो तालीम अपने ज़माने के मुताबिक हुआ करती थी, और वो ज़माने के तकाज़ों को पूरा करती थी। चाहे फ़िक़्ह हो, चाहे इल्मुल कलाम हो, चाहे साइंस की तालीम हो। और यही वजह है कि हमारे इन्हीं मदारिस से एक ज़माने में अहमद लाहौरी जैसे लोग निकलते थे, जो ताजमहल बना सकते थे, जो इतनी सारे बड़े बड़ी तामीरात सामने ला सकते थे। और वहीं से इमाम गजाली जैसी शख्सियात निकली है, वहीं से इब्न खल्दून जैसी शख्सियात निकली है। तो वो तो अपने ज़माने के इमाम थे, और उनको अपने ज़माने के उलूम और ज़बानों पर अबूर हासिल था। एक सबसे बड़ा सब ये भी वजह है कि जो जो इज्तिहाद का दरवाज़ा बंद हो गया, उसकी वजूहत और थी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो सिर्फ अंदरूनी वजूहत थी, बैरूनी वजूहत भी थी, क्योंकि बगदाद का हमला जो था, वो पता है कितना मुसलमानों को कितनी खून रेजी का सामना करना पड़ा, और उनको कितना नुकसान हुआ उससे। तो लेकिन अब जो बच्चा खुचा दीन था, उसको बचाना भी जरूरी था, इसलिए दरवाज़ा बंद हो गया, लेकिन फिर हमेशा के लिए बंद हो गया। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, इंटरेक्शन खत्म हो गया, एक मायूसी का माहौल पैदा हो गया, इस महलाल का जो एक पूरा सिलसिला शुरू हुआ, और वो जो तसलसल चल रहा था हमारी इल्मी फुतूहात का, वो रुक गया। पहले हम ग्रीक किताबों का तर्जमा किया, यूनानी किताबों का तर्जमा किया अरबी में, फिर लोगों ने तहकीकात उस पर करना शुरू किया, उस पर जो है उन्होंने बहुत सारी शरह लिखी। और फिर तनकीद शुरू हो गई उस पर इमाम गजाली के ज़माने से, और बाकी उलमा ने की। तो वो सिलसिला रुक गया, जो इल्म के साथ एक ताल्लुक था। और वो सिर्फ इस्लामी उलूम नहीं, उलूम अक़लिया भी था और उलूम नक़लिया दोनों भी थे। अब तो उलूम नक़लिया पर इतना जोर हो गया, वो भी फ़िक़्ह के लिहाज से हो गया। मुख्तलिफ मकातिब फ़िक़्ह जो थे, उन्होंने अपने अपने मदारिस कायम कर लिए, और उसी फ़िक़्ह को मुरोज करने लगे जो उनके मसलक का था। तो बाकी जो मकतब फ़िक़्ह थे, उनका भी मुताला ख़त्म हो गया। दूसरे मकातिब फ़िक़्ह का भी मुताला नहीं कर रहे थे उस ज़माने। तो दूसरे मज़ाहिब का तो मसला ही नहीं, दूसरे की साइंस की तरक्की का कोई सवाल ही नहीं। तो इस तरह से एक वो तसलसल रुक गया,
जो हमारा चल रहा था इल्मी फतूहात का, जो शुरू हो गया था जो है बैतुल हिकमा की तामीर के बाद। और एक तरफ वहाँ पर दीनी उलूम पे काम लोग कर रहे थे, बड़े बड़े मुफस्सिरीन उभर रहे थे, मुहद्दिसीन उभर रहे थे, फ़ुक़हा किराम उभर रहे थे, सूफिया किराम आगे आ रहे थे। और दूसरी तरफ से जो दुनियाई उलूम जिनको हम कहते हैं उलूम अक़लिया, उनमें बड़े बड़े काम मुसलमान कर रहे हैं। और वो दोनों तरह के उलमा हमारे पास थे। और उन्हीं की नाम की वजह से हमारी पहचान है इस वक्त दुनिया में। किसी का भी नाम लीजिए, मैं इस वक्त वक्त की तंगी की वजह से मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूँ। तो ये जो एक फिर दुई पैदा हो गई इल्म में, दुनियाई और दीनी इल्म। और फर्ज किफाया फर्ज है, ठीक है, उसकी अपनी अहमियत है, जाहिर सी बात है, दीन के उलूम तो फर्ज है ही। जैसे दीन का इल्म हासिल करना फर्ज है, दीन की जो हमारे जो अहकाम है उन पर अमल करना फर्ज है हमारे लिए, और उनके लिए इल्म हासिल करना भी फर्ज है। लेकिन जो बाकी उलूम थे उनकी तरफ से हमारी गफलत हो गई, और उन पर दूसरे लोगों ने कब्जा कर लिया, उनको इतने आगे बढ़ा दिया कि हम उस तक पहुंच भी नहीं सकते, हम उनको उलूम को समझ नहीं पा रहे। तो ये एक वजह हो गई, तसाहुल पैदा हो गया। हालात की उसमें बैरूनी हालात भी थे, लेकिन कुछ अंदरूनी हालात भी थे जिसकी वजह से सब कुछ हमारे सामने वाक़ा हो। बहुत खूब। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें आप क्या क्रेडिट इसको भी देते हैं कि उलमा जो पूरी दुनिया के अगर हालात से बाखबर नहीं हैं, या उनके उन तक रहनुमाई अपनी नहीं पहुंचा सकते आलमी सतह पर, जिसको हम खिदमत कह सकते हैं, क्या उसको ये उसमें ये क्रेडिट जाता है कि ज़ुबान भी उनको नहीं आ रही, और वहाँ का कल्चर और रहन सहन का भी उनको पता नहीं है? बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। देखिए, आपको पता है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ यहूदी आए, तो कुछ मुज़ाकरात हो रहे, कुछ बातें हो रही थी। और नजरान का वफद भी आया, बाकी लोग भी आते रहते थे के पास, वफूद जो हम जानते हैं, वफूद जो आते थे। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर बिन अब्दुल्लाह बिन आस से उनको हुक्म दिया कि चूंकि हमारे पास यहूदियों का सिलसिला रहता आने जाने का, तो हमें उनकी ज़बान जाननी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होने चाहिए हमारे अंदर जो उनकी ज़बानें सीखे। फिर उमर बिन अब्दुल्लाह बिन आस और हजरत जैद बिन साबित ने हिब्रू ज़बान सीखी। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी दूसरे ज़बानें जानने का जो है रवाज था, तो बाद में क्यों सिलसिला ख़त्म हो गया? हमने सिर्फ जो है कुछ एक दो ज़बानों को लेके बैठ गए, जबकि आलमी ज़बानें बहुत सारी थी। यहाँ तक कि अरबी में भी इतनी हमने वो शुद्धि पैदा नहीं की थी। दीनी मदारिस में भी फारसी में ज़्यादा होता था, मतलब किताबें वगैरह सब दर्स होती थी शुरू में आप उर्दू में। तो मैं बरसगीर की बात करूँ, और बाकी जगहों पर भी जो दूसरी ज़बानें मरविश थी, तो अपनी ज़बानों में वो बात करते थे, तालीम देते थे। तो दूसरी ज़बानों से हमारी गफलत हो गई, और ज़बानों के इल्म के बगैर हम दूसरे लोगों से बात कैसे कर सकते हैं? पैगम्बरों को भी तो सारी कौम दे के भेजा गया है ना। तो जब तक हम लोगों के साथ कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, बल्लिगु अन्नी वलौ आया का मतलब क्या है? तो तब इब्लाग तो ऐसा होता है जो लोगों की समझ में आए, ये सिर्फ कहना थोड़े होता है। तो इसलिए हमारा ये फर्ज था कि हम वो ज़बानें सीखते। अब देखिए, हमारे जो दूसरे मज़ाहिब के उलमा हैं, स्कॉलर्स हैं, उनको बहुत सारी ज़बानों पे अबूर है। वो अगर इस्लाम पे काम करना चाहते हैं, तो फिर वो पहले अरबी पर इतना अबूर हासिल करते हैं कि अरबी के माहिर बन जाते हैं, फारसी के माहिर बन जाते, उर्दू के माहिर बन जाते, तुर्किश लैंग्वेज के माहिर बन जाते। उसके बाद वो इस्लाम पे काम करते हैं, और इथनोग्राफिकल स्टडीज के जरिए से वो उस माहौल में रहते हैं, बसते हैं, जिन पे उनको काम करना होता है। और बेहतरीन वो मुबल्लिग अपने मजहब के साबित हो जाते हैं, और बहुत बेहतरीन मुअल्लिम साबित हो जाते हैं। उसके पास हमारे यहाँ देखिए, जबानें कोई पढ़ता ही नहीं है, जैसे हराम है पढ़ना जबान किसी और कौम की, जबकि जबानें सब अल्लाह ने पैदा की, और जबानों में निशानियां हैं। ऐसे इंसान के रंगों में वैसे जबानों में निशान है, कुरान का ये मतलब फरमान है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक वजह ये भी थी कि कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो, और कम्युनिकेशन के लिए सबसे बेहतरीन जरिया जबान थी, और जबानों पर हमारा ऊपर नहीं। और जबानों के पढ़ने का कोई रिवाज ही नहीं रहा हमारे मदारिस में दूसरी जबानों का, सिर्फ एक दो जबानें। और अक्सर वो जबानें भी लोकल जबान थी या कौमी जबान। तो नतीजा ये निकला कि हम अपने इलाके में महदूद होकर रह गए, और छोटा सा एक हल्का हमारा बन गया। उसकी वजह से और जो है जहन भी हमारा महदूद हो गया, और हम कम्युनिकेट नहीं कर पाए, हम दूसरे उलूम को अखज़ नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमारी रफ्तार रुक गई, इल्म की भी, तालीम की भी, और ताल्लुम की भी। बहुत खूब। अच्छा डॉक्टर साहब, आप फरमाते हैं कि तालीम और ताल्लुम की रफ्तार रुक गई, लेकिन मदारस की तरफ से तो सवाल ये होता है कि हम तो अपने हिस्से का बड़ा काम कर रहे हैं, कि जो जो हमारे ज़िम्मे काम लगा था क़ुर्रा तैयार करना, उलमा तैयार करना, तो वो तो हम कर रहे हैं। बाकी उलमा जो है ना, वो दीनी यानी असरी उलूम और जदीद तालीम जो है ना, वो वो बाहर से जाकर मसलन हासिल करते हैं तो करें। तो
اس کا ہم کیا حل نکال سکتے ہیں؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر ہمارے 6% بچے دینی مدارس میں پڑھتے ہیں، یہ ایک اندازہ لگایا گیا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ امپیکٹ تو بہرحال علماء کا ہی ہوتا ہے سماج میں، دانشوروں کا نہیں ہوتا ہے۔ میں ایک بات بتا رہا ہوں، میں آپ کو ایک عجیب سا واقعہ بتاؤں گا۔ جب یہ ہفتے وحدت تھا دلی میں، تو آیت اللہ جنتی آئے تھے وہاں ایران سے، ہمیں بھی دعوت دی گئی تھی، علی گڑھ میں پڑھتا تھا میں اس زمانے میں، تو میں بھی گیا۔ تو میں نے ان سے سوال کیا، مولانا جنتی صاحب، آپ نے ایران میں اتنا بڑا انقلاب لایا، اس کا سبب کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ کتنے علماء ہیں؟ میں نے کہا کوئی نہیں۔ کہا پھر آپ کامیاب نہیں ہو جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، لوگوں کی کانشنس بنانے کے لیے اور ان کا مزاج بنانے کے لیے اور ان کا مائنڈ سیٹ بنانے کے لیے جتنا رول علماء کا ہے وہ کسی دانشور کا نہیں ہو سکتا، سیاستدان کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ مساجد سے منابر سے تو بہرحال وہی اپنی گفتگو پیش کرتے، وہ درس و تدریس دیتے ہیں، اور گھروں پر، بچوں پر، بزرگوں پر، سب پر ان کا اتنا اثر ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے دور کوئی نہیں کر سکتا ہے، ختم بھی کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ 6% ہونے کے باوجود ان کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے۔ جب تک ہم مائنڈ سیٹ چینج نہیں کریں گے دنیا کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اب آپ کہیں گے بھائی لوگ دوسرے لوگ کام کریں، علماء کیوں یہ کام کریں، یہ کون سی بات ہو گئی؟ ظاہر سی بات ہے کہ علماء کو تو دنیا کی رہنمائی کرنی ہے نا، علم دین کے بغیر تو دنیا کی رہنمائی ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر علم دین کے ساتھ ساتھ دنیائی علوم پر دسترس نہ ہو ہمارے علماء کی، تو پھر بتائیے کہ وہ کیسے آج کے نوجوان کو سمجھا سکتے ہیں چیلنجز کیا ہے؟ دیکھیے اس زمانے میں ان لوگوں نے دین کے لیے اچھا خاصا کام کیا ہے جو مدارس سے نہیں پڑھے تھے۔ مثلا ان میں آپ لے لیجئے اسرار احمد صاحب، آپ باقی لوگوں کا بھی نام میں لے سکتا ہوں، تو اقبال کو لے لیا، یا علی شریعتی میں ایران کی بات میں تمام لوگوں کو ساتھ لے کے چلتا ہوں، یا اسی طرح سے باقی اور بہت سے لوگ آپ نام لے سکتے ہیں جنہوں نے اچھا خاصا متاثر کیا ہے اس زمانے میں لوگوں کو دین کے تناظر میں، حالانکہ وہ دینی مدارس میں نہیں پڑھے، کیونکہ ان کا ایک ایڈوانٹیج یہ تھا کہ وہ آج کی زبان کو جانتے تھے، آج کے علوم کو جانتے تھے۔ اگر علماء کے پاس بھی وہ علوم ہوتے وہ زبان پر، تو علماء کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ جسے انور شیخ کشمیری رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، آج کے زمانے میں فلسفہ سے زیادہ سائنس کی اہمیت، اور سائنس کو ہمیں پڑھنا چاہیے، سائنس کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ اور اس طرح سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کہنا کہ نہیں بھائی ہم اپنے حصے کا ہم کام کر رہے ہیں تو دوسرے لوگ، وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ہماری بنیاد جو ہے دین ہے۔ دیکھیے مغرب مشرق میں لوگوں کا مزاج دینی ہے، فلسفیانہ نہیں ہے۔ مغرب میں فلسفیانہ مزاج ہے، تو یہاں پر ہم لوگ ہر چیز کو دین کے تناظر میں دیکھتے ہیں، چاہے عمل کتنا کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں پر دین کا جو انکانشیس جو ہوتا ہے نا، جو تحت شعور، اور یہ جو ہمارا شعور، تحت شعور اس کو ہم کہتے ہیں انکانشیس، وہاں پر دین بسا ہوا ہے۔ اور یہ جو جمال افغانی نے فرمایا ہے کہ جب کبھی کسی گھر میں بات ہوتی ہے تو پہلے موسم سے شروع ہوتا ہے، پھر کھانے سے شروع ہوتا ہے، پھر تان ٹوٹتی ہے دین پہ، اور وہ دینی مزاج بنایا ہوتا ہے مولوی صاحب نے، جو لوکل امام ہوتا ہے مسجد کا، جو اس کی سطح علمی سطح ہوگی وہ لوگوں کی دینی سطح ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو زمانے کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے، اور اجتہاد کے لیے ضروری ہے اپنے زمانے کے حالات کو سمجھنا، اور وہ اجتہاد علماء ہی کر سکتے ہیں دین کے معاملات میں۔ اگر آپ نے دانشوروں پر اجتہاد چھوڑ دیا تو پھر نیاز فتح پوری صاحب جیسے لوگ اور جاوید گاندھی صاحب جیسے لوگ جو اجتہاد کر رہے ہیں، اور اس سے کیا ہماری قوم کا حال کیا ہو رہا ہے آپ سمجھ ہی سکتے ہیں، تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ علماء کا ہے کام کہ یہ کرے وہ، اور جدید علوم سے اپنے آپ کو آراستہ کرے، اس سے کوئی مفر نہیں ہے۔ یہ اپنے آپ کو کہنا کہ صاحب ہمیں ان کی کیا ضرورت ہے، باقی لوگ کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہو گئی؟ تو یہ عیسائی علماء تو یہ نہیں کہہ رہے، ہندو علماء تو یہ نہیں کہہ رہے۔ آپ دیکھیں ایک جو ہندو جوگی جو حکومت کر سکتا ہے، تو ہمارا عالم جو ہے ایک ادارہ چلا سکتا ہے، کوئی یونیورسٹی چلا سکتا ہے، اپنی یونیورسٹی بنا کے کوئی ماڈرن یونیورسٹی چلا سکتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی یونیورسٹی بنائے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن میں کہتا ہوں آج کے اداروں کی رہنمائی کر سکتا ہے، کیونکہ ہم نے وہ تربیت حاصل نہیں کی، صلاحیت ہمارے اندر ہے۔ اور شکر ہے اللہ کا، علماء میں سے کچھ لوگ نکلے، مثلا یہ مصطفیٰ اعظمی اور باقی لوگ، دینی تعلیم پڑھنے کے بعد جب انہوں نے اور حدیث پہ کام کیا تو ایک نام پیدا کیا، ناصر البانی کو لے لیا، انور شیخ کشمیری کو لے لیا، اور باقی تمام یا بذات خود میں سب علماء کی عزت کرتا ہوں، بذات خود میں کہتا ہوں احمد رضا خان بریلوی کی بھی دیکھیے آپ، سائنس کے بارے میں ان کی معلومات، باقی ٹھیک ہے ان سے اختلاف ہو سکتا ہے، اس میں کوئی عرض نہیں، اچھا خاصا انہوں نے سائنس کے بارے میں تو معلوم ہوا ہے کہ اگر ہم چاہیں، مشکل نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم وہ اتنی معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اتنی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں، ہم قوم کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم اختلافات کو کم کر لیتے آپس میں اور دوریوں کو ختم کرنے کے بعد ہم کلمت الصباح پر آ جاتے سب علماء کرام، اور کچھ مشترکہ ہم منیمم کامن پروگرام بناتے نئی نسل کے لیے، کیونکہ ہمارے نئی نسل پر جو ہے اب جو ہے حاوی ہو گیا ہے مغربی فکر، اور مغربی فکر پر جو ہے فلسفہ حاوی ہو گیا، اور فلسفہ کیسے الہات
और कुफर और पता नहीं किन किन इज़्मों के शिकार हो रहे हैं, हमारी नई नस्ल हो रही और हमारे हाथ से जा रही। तो ये एक बहुत बड़ा मसला हमारे लिए है। तो उलमा को इस तरफ तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और उसमें दानिशवरों को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। और ये हमारे तक़ी मीर साहब फरमाया करते थे, उलमा और दानिशवरों का राबता और अहया इस्लाम। जब तक उलमा और दानिशवर आपस में मिलजुल के नहीं बैठेंगे, एक दूसरे का ताउन नहीं करेंगे, मुझे लग रहा है कि हम अपनी नई नस्ल को नहीं बचा सकते। जो इर्तिदाद का एक तूफान आ रहा है, अब तो ऐसी ऐसी थ्योरीज आ रही है, ऐसी ऐसी फिलासफीज आ रही है कि अल्लाह रहम करे, हमारी पूरी नस्ल जो है तबाह बर्बाद होने जा रही है। तो इस तरफ ध्यान देने की जरूरत बहुत खूब। अच्छा, यहाँ से एक दिलचस्प सवाल निकलते हैं डॉक्टर साहब कि आपने फरमाया कि दानिशवरों के साथ राब्ता रखने की ज़रूरत है, ताल्लुक़ रखने की ज़रूरत है। लेकिन एक कंसेप्ट पाया जाता है, वो ये है कि अगर उसकी दाढ़ी नहीं है, या वो मुफ्ती या बड़ा शेखुल हदीस नहीं है, बस एक आम आदमी है, उसने दरस निज़ामी अगर नहीं पढ़ी हुई, तो इससे हम क्यों नॉलेज लें? क्योंकि ये तो आलिम है ही नहीं है। यानी जो सवाल करने वाले होंगे तो उनके ज़हन के मुताबिक तो ये कुछ भी नहीं है। अगरचे वो उसने डॉक्टरेट भी किया हुआ है, अगरचे उसने बहुत कुछ उसमें हासिल किया हुआ है, लेकिन चूंकि मदरसे से नहीं पढ़ा हुआ तो हम इससे कुछ भी नहीं लेंगे। इस कंसेप्ट को आप क्या ताबीर करेंगे और इसका हल क्या निकालेंगे? है। देखिए, जाहिर सी बात यह है कि लिकुल लिकुल फन रिजाल, हर फन के रिजाल होते, लोग होते। अगर आपके अंदर सलाहियत है किसी इल्म में तो दूसरे इल्म में नहीं है, जाहिर सी बात है आपको ढूंढना पड़ेगा जिन लोगों के पास सलाहियत है। अब देखिए, इकबाल रहमतुल्लाह ने जो है मौलाना अब्दुल नबी साहब को मुतासिर किया, खामनाई को भी मुतासिर किया, मुल्ला मोदी को भी मुतासिर किया, असरार अहमद को भी मुतासिर किया, देवबंद के उलमा को भी मुतासिर किया, और तमाम मकाती फिक्र के उलमा, क्योंकि उनके अंदर कोई जान थी ख्यालात में, क्योंकि वो अपने हालात को जानते थे। ये को नम बिसर में जमाने, अपने ज़माने को जानते थे। तो इसलिए जो है मजबूर तो हम हैं, हमें तो दूसरों का सहारा लेना ही पड़ता है, इंटरनेट का सहारा लेना पड़ता है, हमें टीवी का सहारा लेना पड़ता है, हमें दूसरे उलूम का सहारा लेना पड़ता है। तो इसलिए ये कहना है कि हमें क्या जरूरत है, हमारे पास तो दीन का इल्म है। और दीन और दुनिया इल्म को हमने जुदा ही क्यों किया, पहले मुझे बताइए। दीन के जरिए से तो दुनिया की रहनुमाई करनी है। अगर हमें दीन के बारे में पता है, दुनिया के बारे में पता, तो रहनुमाई किस तरह से कैसे करेंगे। मसलन मैं मिसाल देता हूँ, हमें जो है एक पानी का इंतजाम करना है वजू के लिए, गुस्ल के लिए, फॉर एग्जाम्पल मस्जिद के लिए। उसके लिए इंजीनियरिंग का तो हमारा कोई इंतजाम तो होना चाहिए ना। यानी उसको मालूम ये हुआ कि ये हमें मालूम करना पड़ेगा कि कैसे हम बेहतर इंतजाम कर सकते हैं, उसके लिए एक इंजीनियर की जरूरत है हमें। हम कहेंगे हमें क्या जरूरत है इंजीनियर की, भाई उसका तो इल्म अलग है, हमें तो दीन का इल्म है, हमने तो दर्स इंतजाम ही पढ़ा है, तो हमें क्या जरूरत है इंजीनियर। हम तो जरूरत महसूस करते हैं और उनकी खदमात हासिल करते हैं, और हर मामले में कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आपका इल्म जो है महदूद हो गया है, आपने फिक्र तक महदूद रखा है, आपने अपने मसलक तक महदूद रखा है, और बाकी जो उलूम डेवलप हुए हैं इस्लाम में भी, और मुसलमानों ने जो उलूम इतने डेवलप किए थे, बकौल अलकिंदी के 37 उलूम अपने ज़माने में वो शिकार करते, मतलब वो शुमार करते हैं फलसफा की। इतने सारे उलूम की वसत हो गई है। तो और हर फन में अपना हर तखसुस होता है। तो हम तो डिपेंडेंट हैं ही एक दूसरे पर इल्म के लिहाज से। अगर कोई कहे मैं नहीं हूँ, तो वो फिर बकौल जमाल अफगानी के कि सारी शाम जो है शमस बाजगा और वो बाकी किताबें सिदरा लेके बैठता है, और अपने आप को हकीमुल इस्लाम समझता है। उसको ये भी पता नहीं है कि अगर ये जो है बत्ती पे रखेंगे चुमनी तो धुआं कम क्यों होता है, अगर नहीं रखेंगे तो ज्यादा क्यों होता है। तो अपने आप को ये जमा अफगानी मजाक उड़ाया उस जमाने के कुछ लोगों का। तो ये यानी जब तक आप अपने जमाने के से बाखबर ना हो, तो रहनुमाई कैसे करेंगे जमाने की। तो ये तो इस्लाम ने हमें कभी ये कहा नहीं था कि लोगों को तो तकसीम ही नहीं किया गया था इस्लाम में। जैसे आपने सही फरमाया, इल्म नाफिया और इल्म गैर नाफिया। इमाम गजाली तो फरमाते हैं कि किसी इल्म को इस्लाम ने रद्द नहीं किया, यहाँ तक कि जादू का इल्म भी जालत से बेहतर है। इमाम गजाली फरमाते हैं, क्योंकि इल्म दावत देता है हरकत की तरफ, और जालत दावत देती है सुकून की तरफ। हरकत हमेशा जो है बेहतर होती है सुकून के मुकाबले में। तो एक वसी तस्वुर था इल्म का, ये महदूद क्यों हो गया। अब उसके हालात कुछ थे, लेकिन अब वो हालात हमारे ऊपर हमेशा हावी रहेंगे। अब वो बगदाद की तबाही की वजह से हुआ था, दुश्मनों के हमले की। अब हम दरवाजा बंद करके रहेंगे, वो कोई इल्म पढ़ेंगे नहीं, और कहेंगे भाई हमारी बात सुनो, कोई हमारे पास आएगा नहीं। नतीजे क्या निकला, नतीजे क्या निकला कि यूरोप के फॉलो बातिल के फॉलो फर की हिफाजत के वास्ते यूरोप जरा में डूब गया, दोस्ता कमर। फतवाए शेख का जमाना कलम का है, दुनिया में अब न रही तलवार कारगर। यानी देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, उनके उलमा किस तरह से डिक्टेट कर रहे हैं चीजें, और हमारे उलमा जो है वो कहते हैं ये इल्म अलग है, वो इल्म अलग है, हमें इनसे क्या मतलब है। हम तो ये पहले तो हमें अपना माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा। दुनियाई और दीनी उलूम की तफरीक हुई थी, उसको दूर करना पड़ेगा। हमें अपने सिलेबस को आहिस्ता आहिस्ता मॉडल मतलब जो है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। हमें अपने ज़माने के हालात को देखना पड़ेगा, नए उलूम को शामिल करना पड़ेगा, क्योंकि इल्म की तरक्की बहुत हो चुकी है।
अब बहुत हम आगे बढ़ चुके हैं दुनिया, क्योंकि मैं दोनों दोनों से मेरा ताल्लुक है, उलमा के साथ भी ताल्लुक है, मदारिस में भी जाता हूँ, यूनिवर्सिटीज में भी जाता हूँ, वेस्ट में भी गया हूँ। और कहाँ पहुंची उनकी, आपको जब मैं अमेरिका में था, तो जिस घर में मैं ठहरा था, ये 2008 की बात है, तो वहाँ के प्रोफेसर साहब ने मुझे कहा, डू यू नो अमीन, ये जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थी, ये सेमिनरी थी, ये एक मदरसा था, ये जो कैम्ब्रिज है एक मदरसा था, आज कहाँ पहुंचा है? हमारा मदरसा क्यों नहीं आगे बढ़ रहा है दुनियाई तालीम में भी, क्यों नहीं? जब जब वो पूछ, जबकि उनके यहाँ ईसाइयों के यहाँ तस्वीर है कि दुनिया, गिव सीजर व्हाट इज सीजर, गिव गॉड व्हाट इज गॉड, खुदा को खुदा का ऐसा, बादशाह को बादशाह का ऐसा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जब वो इतना बढ़ सकते, जबकि उनके यहाँ इस तरह तस्वीर नहीं, इल्म का वसी तस्वीर हमारे यहाँ तो है। हमारे यहाँ तो इल्म का मादू तस्वीर है ही नहीं, हमारे यहाँ इल्म का तस्वीर बहुत सबसे ज्यादा वसी है। इसमें तमाम उलूम जो है मतलब आ जाते हैं, इन फी खल्क़ि समावाति वल वख्तिलाफ़ि फिल लैलि वन नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। उली अलबाब के लिए निशानी है। अब उली अलबाब कौन बन गया आज के? वेस्ट के लोग वो आसमान में जा रहे हैं, वो बस्तियां बसा रहे हैं, और हम लोग जमीन पे भी नहीं चल पा रहे हैं। हम तो मस्जिदों में सिर्फ फतवा दे रहे हैं कुफर के, एक दूसरे एक आदमी को मुसलमान नहीं बना रहे हैं, जो मुसलमान है उनको भी काफिर बना रहे हैं। और मुसलमान उलमाए किराम एक दूसरे के, ये जो इंटरनेट का गलत इस्तेमाल हो रहा है इस वक्त, किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहते हैं। अफसोस होता है, क्या इसलिए ये साइंस वालों ने इजाद की थी ये सब चीजें? यानी नजदीक लाने के बजाय एक दूसरे को, हम एक दूसरे को दूर कर रहे हैं। और इस तरह से बहसें हो रही है, जैसे जैसे इसने कहा था ना, अकबर लाबादी ने, मजहबी बहस मैंने की नहीं, फालतू अकल भी थी नहीं। हमारे पास तो सिर्फ फालतू अकल है, हम तो इसे इस्तेमाल ही नहीं करते हैं कायदे के लिए। कितना इस्तेमाल कर सकते हैं हम इंटरनेट को दावत देने के लिए दुनिया में? एक एक इंसान तक हम अल्लाह की दावत पहुंचा सकते थे, कुरान की दावत पहुंचा सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती का मकाम यह है कि हमारे अंदर, चूंकि जिन लोगों ने ये उलूम ईजाद किए, ये साइंस और टेक्नोलॉजी ईजाद की है, उनको पता है इनको कैसे इस्तेमाल करना है, और हम उसका मिसयूज कर रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ अजीज, हमें अपना तस्वीर, माइंड सेट बदलना पड़ेगा। कब तक हम ऐसे रहेंगे? वरना एक जमाना वो आएगा, हमारी नई नस्ल हमारे हाथ से निकल जाए। ठीक है, वो हमारे हाथ पैर चूमेंगी, लेकिन अमल उनका अंग्रेजों जैसा हो, उनका अमल जो है मतलब मुल्हिदों जैसा होगा, जो हो भी रहा है। आप देख रहे हैं, अगर आप उधर उधर जाएं, आप देखिए हमारी नई नस्ल हमारे हाथ से निकल चुकी है। मैं जाता हूँ, मुझे मैं खून के आंसू रोता हूँ कि अपनी हमारी गफलत की वजह से। उलमा को अपने आप को अपने ज़माने के हालात से बाखबर रखना पड़ेगा। शुक्र है अल्लाह का, मैं बागाफिल नहीं हूँ कि हमारे जो हिंदुस्तान में फ़िक़्ह एकेडमी है माशाल्लाह, उसमें खालिद सैफ रहमानी साहब जैसे उलमा इकराम हैं, और मौजा इस्लाम कासमी जैसे, तो मैं, हमारा ताल्लुक उन सबके साथ है। अब वो भी में बेदारी पैदा हो रही है, हमारे कश्मीर में भी माशाल्लाह उलमा इकराम अच्छे खासे हैं, वो जा रहे हैं, लोगों के नज़दीक आ रहे हैं। तो लेकिन हमें इसको एक कांस्टेंट एक मुहिम के तौर पर आगे बढ़ाना है। अपने उलूम में रसूख तो पर्दा रखना ही है, क्योंकि वरना कोई अजान देने वाला भी नहीं रहेगा, कोई हाफिज भी नहीं रहेगा, अगर हम जो हमारा दरस निज़ामी है उसको कायम नहीं रखें। वो तो रखना ही रखना है, लेकिन उसके साथ साथ हमें दूसरे चैलेंजेस को भी, दूसरे उलूम पर भी महारत हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा, इसमें एक सवाल अब हम इस तरफ मुतवज्जे होते हैं, और वो सवाल ये होगा कि बहुत सारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं और हमारे जो दानिशवर हैं, वो मदारस के मसाइल को तो जिक्र करते हैं, लेकिन हल स्पेसिफिक वो हल क्या दें? क्योंकि फिर इसमें आले मदारस भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। मसलन उसमें एक अहम चीज़ है, वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर ही आपको देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस और ये मकातब फ़िक्र मिलते हैं। इस वक्त आप मलेशिया में बैठे हुए हैं, यहाँ पर तो कोई इनमें से एक भी नहीं है। स्वाय मुसलमान होने के हमारी कोई पहचान नहीं है। चारों फिक हैं, उनको पूरे दुनिया में फॉलो किया जा रहा है। तो यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। तो अब वो एक महदूदियत, एक ही मुल्क की सतह पर जो हमारे फिरके और मसालिक बने हुए हैं, इसमें से वो कौन सा मॉडल आप देना चाहते हैं कि हम ना उस मॉडल पे ऐसे उतरें कि उसमें तमाम मसालिक जो है ना मुश्तरका काम कर सकें। अभी तो जो मदरसा है तो देवबंदी का है तो देवबंदी का ही है, बरेलवी है तो फिर वो बरेलवी, उसकी अपनी पहचान है, यानी पहचान मसलक की है, और फिर इस्लाम और मुसलमान होना वो ज़िमन में चला गया है। तो असल पहचान हमारी मसलक बन चुका है। हालांकि होना ये चाहिए कि असल पहचान हमारी इस्लाम हो, और सोचने का जो मकतबा फ़िक्र है वो फरूई तौर पर वो की एक मसलक हो। तो यहाँ पर एक चीज़ जो ज़िमन में थी वो असल बन चुकी है, जो असल थी वो ज़िमन बन चुकी है। तो इसका क्या हल होगा? बहुत मैं इत्फाक करता हूँ आपके साथ, और मैं हमेशा ये बात कहता रहता हूँ कि जब आप मसलक की बुनियाद पे कोई मदरसा कायम करेंगे, तो वो मसलक की ही तरोीज करेगा, हम्म, और वो दूसरे मसालिक को रद्द करने के जरिए से ही अपने बका का इंतजाम करेगा, वरना कोई सूरत नहीं है बका की। हम्म, और उसका मकसद ये होता है कि मैं अपने मसलक की तायीद करना चाहता हूँ, उसको हम्म, बरहक साबित करना चाहता हूँ तमाम दूसरे मसालिक पर, और कर भी रहे लोग। उसकी हम्म, बुनियाद ही वही थी।
اور اگر آپ صرف جو ہے تاریخ کی بنیاد پہ کوئی مدرسہ قائم کرتے ہیں یا کسی عقیدے کی بنیاد پر کوئی مدرسہ، اسی عقیدے کی آپ تائید کریں گے پوری عمر اس مدرسے کے ذریعے سے، ظاہر سی بات مقصد اس کا یہ ہے۔ لیکن جو اصل تصور تھا اسلام کا تعلیم کا، وہ قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث کی تعلیم دینا، اور یہ یونیورسل تعلیم رب العالمین کی تعلیم ہے، رحمت العالمین عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہے، اور خدا للناس۔ اس میں تو مسلمان ہندو کی بھی تفریق نہیں، غیر مسلم کی، بلکہ تمام لوگوں کے لیے اس تعلیم کا جو ہے دائرہ کار متعین ہو گیا تھا۔ وہاں تک پہنچانا ہے سب کو، بلغ عنی ولو آیا، کسی تک بھی پہنچانی تھی وہ آیت۔ لیکن جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا مسلکوں کا، اور مسلک کی مدارس بن گئی، تو پھر ان سے آپ امید یہ کریں گے کہ یہ عالمگیر انداز کی کوئی بات پیش کریں گے، نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کا ویلٹن شونگ جو ہے، ورلڈ ویو جو ہے، نظر حیات جو ہے، وہ محدود ہو کے رہ گیا ہے۔ وہ فقہ کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کی ایسی تعویل کریں گے کہ اللہ رحم کرے۔ اور پھر اقبال کہتے ہیں نا کہ یعنی ہمارے طرف سے سلام کہنا ان کو کہ اللہ نے یہ پیغام نہیں دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا نہیں تھا، حضرت جبریل نہیں لیا تھا، یہ خود، لیکن تعویل وہ در حیرق اندہ، خدا و مصطفیٰ جبریل و مصطفیٰ، یعنی ایسی تعویل کریں گے کہ خدا اور جبریل اور نصب اللہ، یعنی تمام حیران ہو جائے، ہم نے تو یہ کہا نہیں تھا، ہم نے تو لکھا نہیں تھا، ہم نے اللہ نے بھیجا نہیں تھا، یہ حضرت اقبال فرما رہے۔ تو اس قسم کی تعویلات لوگ کریں گے اپنے مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے کہ آدمی حیران ہو جائے گا، حدیث کا انکار کرے، قرآن کی آیتوں کی تعویل ایسے کریں گے کہ مطلب توڑ مروڑ کے پیش کریں گے۔ تو یہ مسئلے کی ذہن جب بنتا ہے، یہ فرقہ وارانہ ذہن جب بنتا ہے، پھر تو بس وہ دو ڈیڑھ انچ کی مسجد بنانے لگتے ہیں لوگ سب۔ اصل جو میرا اس میں حل میرے نزدیک ہے، جو اس وقت ہمارا اسلام نالج کا بھی سلسلہ چل رہا ہے یہاں پر، انٹیگریشن آف نالج بھی پوری موومنٹ شروع ہو گئی پوری دنیا میں، جس مسئلہ کی بنیاد پر یہ یونیورسٹیز بن رہی ہیں، اسلامی یونیورسٹی ملیشیا، اسلامی یونیورسٹی ہے اسلام آباد، اور بہت سارے ادارے۔ تو وہاں پر یہی ہے کہ ہمیں قرآن اور کائنات کا مطالعہ کرنا پڑے گا ایک ساتھ، اور اپنی لیگیسی کو قرآن حدیث کی روشنی میں دیکھنا پڑے گا۔ ہم اپنی لیگیسی کی روشنی میں دیکھتے ہیں قرآن حدیث کو، قرآن حدیث کی روشنی میں اپنی لیگیسی کو نہیں دیکھتے۔ ہم اب مسئلہ کے ذریعے سے قرآن حدیث کو دیکھتے ہیں، قرآن کے ذریعے سے مسئلہ کو نہیں دیکھتے۔ پرابلم یہ ہے، میں اکثر یہ کہتا ہوں واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو، ولا تفرقوا۔ ہم فرقہ بن بن کے قرآن کو دیکھتے ہیں، اور پھر اپنے فرقے کا جسٹیفیکیشن ڈھونڈ، ہم قرآن کے ذریعے سے فرقوں کو نہیں دیکھتے، پھر کوئی فرقہ ہی نہیں رہتا، کوئی جواز ہی نہیں اس فرقہ بندی کا، اس مسلک پسندی۔ مسلک ہم اس لیے اختیار کرتے ہیں آسانی ہو، لیکن دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے مسلک کا استعمال کرے تو وہ تو بہت غلط استعمال ہے مسلک۔ یہ تو اللہ نے بقول، جیسے ڈاکٹر حمید اللہ نے کہا ہے پیرس والے، اس نے کہا اللہ کو تمام پسند آ گئی ادائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے تمام اداؤں کو رکھا، نماز میں بھی ہاتھ چھوڑنا، ہاتھ باندھنا، کام باندھنا، حدیث ہے سب کے لیے ہے نا، حدیث تو ہے نا، اذا صح الحدیث فهو مذہبی، حضرت شافعی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے ہیں حدیث صحیح آ گئی پھر میرا مذہب وہی ہے، میں اپنا مسلک نہیں پکڑوں گا اس وقت۔ لیکن بدقسمتی جب فرقہ وارانہ اور مسلک کی ذہن بنتا ہے، پھر آدمی قرآن کی بھی تعویل کرتا ہے، حدیث کو بھی کبھی کبھی رسول اللہ وہ اس طرح سے پیش کرتا ہے جیسے وہ حدیث ہو ہی نہ۔ تو میرے کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں تھوڑا توسط پیدا کریں، جو قرآن کا پورشن ہے وہ جدا ہمیں لانا پڑے گا اپنے سلیبس میں، اور وہ بقول شبل نامانی کے وہ تو اتنا ہی ہے جتنا جلالین کے الفاظ ہیں، اتنی تفسیریں ہمارے پاس۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ہم نے قرآن کا پورشن زیادہ رکھا ہوتا اپنے نصاب میں، اور پھر حدیث، وہ بھی احادیث کا وہ مسئلے کے لحاظ سے جو ہے انتخاب نہیں ہونا چاہیے تھا، حدیث کا جیسے انتخاب ہونا چاہیے تھا یہ، اس کے بعد فقہ، جو ترتیب ہونی چاہیے تھی وہ اس وقت ترتیب الٹ گئی۔ تو قرآن پہ جو زور دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا گیا کہ دیکھیے قرآن ہم پڑھتے ہیں نا، قرآن سے ہمارا ذہن عالمگیر بنتا ہے، عالمگیر ذہن بنتا ہے، اس میں ہم دوسرے توسط پیدا ہو جاتا ہے قرآن کے ذہن، کیونکہ اللہ رب العالمین کا کلام سے ملوک الکلام کلام الملوک، ملوک کلام الملوک ملوک الکلام، یہ جو اللہ کا کلام ہے اس سے انسان کا ایک ذہن بہت وسیع ہو جاتا ہے۔ پھر حدیث دیکھیے آپ، حدیث سے بھی بڑا وسیع ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، ارشاد فرما رہے تھے، اس وقت کوئی مسلک نہیں تھا، ما انا علیہ اليوم واصحابی، تو اس لیے حدیث کے ذریعے سے بھی ایک توسط پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد فقہ، اور تمام فقہ اگر مقارن، جو فقہ مقارن، تمام فقہوں کا مطالعہ کیا جائے مدارس میں، تنقیدی کہ مطلب میں حنفی ہوں، حنفی مکتب کو فوقیت دینے کے ساتھ ساتھ میں دوسرے مقاصد فقہ کو بھی پڑھوں گا، ایک وسعت پیدا ہو جائے گی، بہت حد تک توسط پیدا ہو جائے گا، برداشت پیدا ہو جائے گی، اور پھر دوسرے مسائل کے عقائد کو بھی، ان کے علم الکلام کو بھی پڑھنا ہے۔ تو ایک جامعہ قسم کا سلیبس میں لانا پڑے گا، اور دانشوروں کے ساتھ جو ہے، دیکھیے ہم کب تک الگ رہیں گے، دور رہیں گے، دانشوروں کی بھی ضرورت ہے۔ حالانکہ میں یہ کہتا ہوں ایک ایسا عالم پیدا ہو جائے جو دانشور بھی ہو، عالم بھی ہو، سائنٹسٹ بھی ہو، فلاسفر بھی ہو،
तो यानी एक सेपरेट पर्सनैलिटी ना हो, इस्लाम तो वही पर्सनैलिटी पैदा करना चाहिए, होलिस्टिक पर्सनैलिटी। जैसे जिसको जो एक शायर, एक आलिम ने कहा, अली होना, यानी हज़रत अली की तरह रज़ी अल्लाह अन्हु, हर तरह की सलाहियतें आपके अंदर है। आप आलिम भी बहुत बड़े हैं, फ़क़ीह भी बहुत बड़े हैं, मुजाहिद भी बहुत बड़े हैं, और यानी हर तरह की सलाहियतें आप में हैं। तो लेकिन बदकिस्मती से अब जो है दुनियाई इल्म अलग होके रह गया है, दीनी इल्म अलग हो गए। जो उसका माहिर है वो इसको नहीं जानता है, जो इसका माहिर है वो इसको नहीं जानता है। और इस तरह से बड़ा नुकसान हुआ, जबकि इस्लाम का तस्वुर इल्म ये नहीं था। अगर आप तो आलिम हैं माशाल्लाह, आप जानते हैं, इल्म इस्लाम का तस्वुर इल्म बहुत जामिया था। इस पे अच्छा खासा लोगों ने लिखा है, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ने खुद अपनी जो अहल उलूम है इस पे लिखा है, मैंने इस पे काम भी किया है। तो इस तरह से हमें रिवाइव करना पड़ेगा वो जो इल्म का तस्वुर था जामिया, वो हमें दोबारा सामने लाना पड़ेगा, और उसको हमें कुरान हदीस की रोशनी में ही देखना पड़ेगा। फिक़्ह तो अपने ज़माने के लिए हो सकता है, लेकिन इज्तिहाद हर ज़माने के लिए होता है। हमने फिक़्ह और इज्तिहाद को मसावी समझ लिया है, प्रॉब्लम ये है। हर ज़माने का इज्तिहाद होता है। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत मुआज़ बिन जबल को फरमाया था कि जब आप जाएँगे यमन तो क्या करेंगे? तो कहा, मैं किताब अल्लाह से कहूँगा, फिर सुन्नत से कहूँगा, अगर नहीं इज्तिहादु बिराई वला आला, मैं इज्तिहाद करूँगा। यानी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी इज्तिहाद की इजाज़त दी गई थी। आज के ज़माने में हमने इज्तिहाद का दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? किसने बंद कर दिया? तो हमने किया। इन्नल हाकिमा इज़ा इज्तहद फअसब फलहु अजरान व इन इज्तहद फअख्तअ फलहु अजरुन औ कमा क़ाल। यानी रसूल फरमाया, अगर हाकिम इज्तिहाद करता है, ठीक करता है, डबल अजर मिलेगा, नहीं तो एक तो मिलेगा ही। तो ये हमने बंद कर दिया। इसकी वजह से इज्तिहाद के ज़रिए से ही इस वक़्त कौमें आगे बढ़ रही हैं। हम इज्तिहाद नहीं कर रहे हैं इस्लामिक स्टेज पर, तो ओरिएंटलिस्ट्स कर रहे हैं, मुस्तशरिकीन वो किताबें हमारे लिए पेश कर रहे हैं, और हमको अपना पट्टी पढ़ा रहे हैं, और हम उनकी तरह सोचने लगते हैं। इज्तिहाद का दरवाज़ा हमें खोलना पड़ेगा, क्योंकि अल्लाह ने बंद नहीं किया, रसूल ने बंद नहीं किया। ठीक है, ये 4 मसाले आ गए, ये तो मसले के लिहाज से ठीक है, लेकिन जो नए मसाइल पैदा हो रहे हैं उनके लिए तो इज्तिहाद करना है ना। चलो नमाज रोजे के मसाइल तो हमने हल कर लिए, लेकिन नए नए मसाइल पैदा हो रहे हैं। बैंकिंग का मसला है, सूद का मसला है, कफालत का मसला है, क्लोनिंग का मसला है, ग्लोबल वार्मिंग का मसला है, और ये वायलेंस इतना ज्यादा दुनिया में हो रहा है, इसका मसला है, क्या हल करें? फेमिनिज्म का मसला है, जी LGBT का मसला है, इन पे गौर करने, हालांकि कुछ काम हो रहा है, मुझे पता है, उलमा किराम इसमें शामिल है, मैं भी उनके साथ हूँ। लेकिन जिस तरह, जिस बड़े पैमाने पे हमें करना चाहिए था, उस तरह हम नहीं कर रहे हैं। हमने उसको चैलेंज नहीं समझा है, इसको एक रूटीन समझा है, लेकिन ये चैलेंज है, रूटीन नहीं। बहुत खूब। अच्छा डॉक्टर साहब, फिर एक और सवाल भी होता है, वो ये है कि मदारस को कौन सा कोई ऐसा मॉडल दिया जाए कि जिसमें वो अपने पाँव पे खड़े हो जाएं। जैसे आपको पता है कि अगर सरकार है तो वो तो उसको सपोर्ट नहीं कर रही, उस पूरे निज़ाम तालीम को। अगर आप मलेशिया के मॉडल को देखें तो यहाँ जो मदारस हैं वो अंडर द गवर्नमेंट हैं, तो वो उनको सपोर्ट वहाँ से मिल रही है। तो यहाँ पे कैसे किया जाए कि मदारस अगर कहें कि भाई हम दोनों तालीमों को नहीं लेकर चल सकते क्योंकि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो इसका क्या हल करें, क्या मॉडल उनको आप देंगे? ये बहुत अच्छा आपने फरमाया। देखिए, मैंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ज़कात की अहमियत क्या है, और मैंने उसमें ये साबित किया है कि ज़कात के ज़रिए से हम तमाम अपने तालीमी निज़ाम को चला सकते, और वक़्फ़ के ज़रिए से। एक ज़माने में औक़ाफ़ के ज़रिए से ही तमाम दीनी मदारिस का काम चलता था, और बल्कि दुनियाई तालीम भी उसी के ज़रिए से होती थी। अगर हम वक़्फ़ के निज़ाम को दोबारा मुस्तहकम करें, इसी तरह से ज़कात के सिस्टम को हम जो उन लाइन्स पे खड़ा करें जिन पे पहले भी खड़ा था, और उसके लिए बाकायदा जो है हम तहकीक करें, इसके लिए काम करें, और उसके अलावा हम अपने आप को इतना मुफीद बनाएं कि लोग हमारे उलूम से फ़ायदा उठाने के लिए अपने बच्चों को हमारे पास भेजें। फ़बिमा यनफ़उ नास फ़यमकुस फ़िल अर्ज़। जो लोगों को फ़ायदा पहुँचाती है चीज़ें, तो वो ज़मीन पे कायम रहती है। आप देखिए कैसे ये हमारे जो बाकी अबनाए जो नवा अबनाए इंसानी जो हमारे भाई है, वो किस तरह से अपने दीनी और मज़हबी, जो उनका जो भी मज़हब उनका है, उसके इनके इदारों को कैसे चलाते हैं। वो अपनी पूरी कम्युनिटी को इन्वॉल्व करते हैं उसमें, उनको आता है करना, और उनके साथ उनका राब्ता ऐसा है, और उनके वसाइल इतने ज़्यादा बढ़ गए। आप देखिए, मसलन वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी है जम्मू में, खरबों खरबों रुपए में उनके, खरबों रुपयों में उनके पास पैसा है, सोना है, इतना सोना है कि अपनी कम्युनिटी को उन्होंने इन्वॉल्व कर दिया है, और कम्युनिटी उनको मदद करती है। जब अपने आप को मुफीद साबित करेंगे हम हर तरह से समाज के लिए, समाज मदद करने के लिए आएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कट गए हम समाज से, कोई रास्ता ही नहीं उनके साथ, हम किसी और दुनिया में रहते हैं, हमारा समाज किसी और दुनिया। वो समझते हैं भाई ये अपना काम कर रहे हैं, हमें क्या उनके साथ, हम क्यों इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, इन्वॉल्व नहीं करते। जैसे आपने वो पहले बात फरमाई थी ना, हम तो दर्ज निज़ामी के पढ़े हुए, हमें इनसे बात करने की क्या जरूरत है, जबकि हमें जरूरत है आपस में तालमेल करने की, दीन को चलाने के लिए दुनिया दुनिया की जरूरत है, दुनिया को चलाने के लिए दीन की जरूरत है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ये तो हमें उसको
अपनाना है ना, अमलन। और ये तीसरी बात ये है कि हमें ऐसे कोर्सेज भी शामिल करने पड़ेंगे तालीम के साथ जहाँ पर रोजगार का भी इंतजाम हो। ठीक है, मतलब जैसे देवबंद में एक अच्छा चीज सिलसिला चल रहा था, साबुन बनाने के तरीके दिखाए जा रहे थे, या यूनानी जो मेडिसिन पढ़ाया जाता था। मेरे भी एक दोस्त थे कश्मीर में, वो देवबंद में पढ़ते थे, उन्होंने वहाँ से यूनानी तालीम, दवाओं, यूनानी जो इल्म है, तो मेडिसिन की तालीम हासिल की। इस वक्त सबसे बड़े वो कश्मीर में जो है यूनानी अस्पतालों के मालिक है। तो यानी एक रोजगार के लिए भी हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि इन दीनी मदारिस के जरिए से ऐसे बच्चे, उनको कुछ तरबियत देनी पड़ेगी, कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, कंप्यूटर सिखाना पड़ेगा, जो आज के उलूम है वो दिखाने पड़ेंगे, कुछ आईटी का दिखाना पड़ेगा, ताकि ये अपनी रोटी खुद कमाए। हजरत जो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह की सबसे बड़ी खूबी ये भी थी कि वो अपना बिजनेस करते थे, वो मोहताज नहीं थे लोगों के उस पर। और तीसरी बात यह है कि हमें गवर्नमेंट को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा, गवर्नमेंट से भी मदद हासिल करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट को लगना चाहिए कि हमें इन लोगों की जरूरत है। हम रूठे रहेंगे दुनिया से तो ये नहीं है, गवर्नमेंट भी तो हमारे पैसे चलती है ना, वो तो हमारा एक्सचेकर में तो हमारा पैसा टैक्स जाता है, क्या हमारा हक नहीं है उस पैसे पे? तो एक बजट तो मखसूस करवाना पड़ेगा उसके लिए कि भाई दीनी तालीम के लिए भी मखसूस होना चाहिए बजट। और फिर इसी तरह से जो हमारे बहुत सारे ऐसे, मतलब चाहिए कुर्बानी की खाले, अगर एक सिस्टमेटिक अंदाज से एक पूल हो जाए ये पैसा सब, एक अथॉरिटी बन जाए उलमा की भी, स्कॉलर्स की भी, मदारिस की भी, जो वो मुख्तलिफ जराए देखे कि कहाँ कहाँ से हम ये दौलत हासिल कर सकते, पैसा हासिल कर सके, कि फिर औकाफ का निज़ाम जो है उसको भी संभाला जाए और लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, दानिशवरों को, तो ताकि वो लोग समझे ये हमारा अपना काम। ये ना लगना चाहिए कुछ लोगों का काम है, उलमा किराम है तो उनका काम है वो चला रहे। ये लगना चाहिए मिलत का काम है, कौमी काम है, ये एक दीनी काम है और इसमें तमाम लोगों की शमूलियत जरूरी है। जब तक हम पूरी मिलत को इसमें इन्वॉल्व नहीं, लेकिन होता क्या है, इस वक्त मरीद साजी पे ज्यादा जोर हो रहा है, माफ करिए आप मुझे, मरीज साजी पे ज्यादा जोर हो रहा है। यानी अपना मरीज बनाने की लोगों को ज्यादा होती है, इदारों के लिए हमदर्द बनाने के लिए, उनका मामले बनाने के लिए कम कोशिश। और ये जो पीरी मुरीदी का सिलसिला हमारे यहाँ, ये भी ठीक था, मैं नहीं गलत समझता उसको, लेकिन ये इसको अगर हम एक्सटेंड करते, इंस्टीट्यूशनलाइज करते उसको, इदारे के लिए पीरी मुरीदी करे कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जात के लिए करें ना। एक आदमी जो किसी इदारे को पकड़ के बैठा है तो बड़ा पीर साहब बना हुआ, उसको लाखों करोड़ रुपए मिल रहे हैं इंडिविजुअली, लेकिन इदारा जो है कसो कसी की हालत में, बच्चे परेशान हैं, उनके लिए खाने के लिए चीजें नहीं। तो ये जरा हमें अपनी जात से ऊपर आना पड़ेगा, एक दीनी काम समझ के इसको करना पड़ेगा। ये जाती काम नहीं है, ये कोई मसले की काम नहीं, ये हमारा फर्ज है। फलल्लाहु नफर मिन कुल फिरक़तिन ताइफ़तुन मिनहुम यतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन। तो हमें इसको एहतमाम के साथ करना पड़ेगा, और ये दीनी तो मुझे लग रहा है कि कोई मुश्किल नहीं है। और फिर जो तजुर्बा दूसरी जगहों पर हुई, मसलन मलेशिया में, मसलन सऊदी अरबिया में, मसलन तुर्की में, मैं तुर्की गया हूँ, तुर्की में दरसखाना है, मैं दरसखाने में गया हूँ, 50 दरसखानों में गया हूँ मैं। वहाँ उन्होंने पूरी कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर दिया उस काम में, दीन के काम में। अब आप किसी जलसे में आप जाएंगे तो रात के 12-12 बजे तक दर्स आप सुनते रहते, एक आदमी भी खड़ा नहीं होगा वहाँ। उसमें आपको इंजीनियर भी मिलेंगे, डॉक्टर भी मिलेंगे। तो जब तक पूरी कौम का मसला इसको नहीं बनाएंगे हम, दीन को, दीनी तालीम को, तब तक जो है महदूद होकर रह जाएंगे, कट के रह जाएंगे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर हम सर जोड़ के बैठेंगे तो जो वसाइल है उसमें ज़कात का भी एक बड़ा अच्छा एक इंतजाम हो सकता है। उसमें मैंने बाकायदा एक मकाला लिखा है और मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया है, मलेशिया में भी, इंडोनेशिया में भी। इस पर मैं कभी बात करूंगा, अगर आप चाहें तो मैं कभी आपके साथ बात ही करूंगा, ज़कात के जरिए से हम कैसे कर सकते हैं। दूसरा औकाफ, औकाफ के जरिए कैसे कर सकते हैं। तीसरा हम कैसे डॉक्टर जनरेट साहब, कर अगर सकते इसकी हैं कोई सारे। ब्रीफ समरी अगर इसी इंटरव्यू में हो जाए कि औकाफ के सिस्टम को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। अभी मैं आपसे अर्ज करूं कि कुछ अरसा से पाकिस्तानी गवर्नमेंट में ने ये सोचा कि मदारस की रजिस्ट्रेशन कर दी जाए, और उसके पीछे जो मैंने पढ़ा तो मुझे ये समझ आया कि मदारस में गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि कुछ निज़ाम तालीम के अंदर कुछ जदीद असरी तालीम को भी शामिल करवाएं, और उसके बाद फिर हम उनको ये जो औकाफ सिस्टम है उसको भी थोड़ा मजबूत करें और मदारस को सपोर्ट करें। लेकिन जो रिएक्शन आया वो ये था कि शायद कोई साजिश है जिसके तहत ये रजिस्ट्रेशन हो रही है, तो वो ना होने दी, मतलब उसमें काफ़ी रुकावटें आ गई। तो क्या हल होगा इसका, और वो सिस्टम क्या है? देखिए, एक चीज बात ये हमें माननी पड़ेगी कि वेस्ट जो है, उन्होंने मदरस के खिलाफ, मदारिस के खिलाफ एक मुहिम चलाई। देखिए, वो समझते हैं कि दीन कहाँ है, हम नहीं समझते इस बात को। दीन तो बारह मदारिस में, ये हम मानते हैं। और हमारा दीन तो इल्म से ही है, हमारा इल्म और हमारा दीन अलग नहीं हो सकता। तो हमारे दुश्मन हमको बेहतर समझते हैं हमसे,
इसलिए वो मदारिस पे भी हाथ डालना चाहते हैं, लेकिन हम उनको मौका देते हैं कि हम अपने आप को ठीक नहीं करते, उनको मौका मिलता है। अगर हम अंदरूनी तौर पर अपने आप को ठीक कर ले, अपने हालात को ठीक करें, किसी को मौका नहीं मिलेगा हमारे ऊपर हाथ डालने का। मैंने ये कहा था उलमा किराम के पास कश्मीर में एक प्रोग्राम में, मैंने ये कहा था कि वक्त किसी का साथ नहीं देता है। अगर हम वक्त के साथ नहीं चलेंगे तो वक्त हमें अपने साथ चलाएगा। इस वक्त हमारे हाथ में है कि हम खुद अपनी इस्लाहत खुद कर सकते हैं, लेकिन फिर एक जमाना वो आएगा हमको मजबूर किया जाएगा आपको ये करना है, वरना नहीं कर सकते आप। तो मैं ये समझता हूँ अगर हम अंदरूनी तौर पर अपने इस्लाह शुरू करें, अपने हालात को ठीक करें, फिर हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हम यहाँ से मशवरा दे सकते हैं गवर्नमेंट को कि इतनी हद तक हमारी आप मदद कीजिए, हमें यहाँ आपकी मदद की जरूरत है। गवर्नमेंट ऊपर से नहीं कहेगी कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये हमें अपने आप को पहले से ही समझना चाहिए कि हमें क्या क्या तैयारियां करनी चाहिए और क्या क्या चैलेंजेस हैं, लोग क्या हमसे एक्सपेक्ट करना चाहेंगे और उनका मकसद क्या है। उनके मकसद जरूरी नहीं कि जो आपके हुक्मरान हों उनके मकासद अच्छे ही हों हमेशा, पता है इसकी तारीफ उनके नजर मतलब मैं समझता हूँ इस बात को, क्योंकि मैंने इस पर तहकीक की है कि क्या तस्वीर पेश किया जा रहा है मदरस का, उसके जरिए से वो खत्म करना चाहते हैं दीन की अहमियत को और जो दीन का जज्बा है। तो उससे बचने के लिए हमें खुद एक अमल शुरू करना चाहिए, खुद एहसास भी शुरू करनी चाहिए। कहाँ कहाँ खामियां हैं जिसकी वजह से हमारे ऊपर हाथ डालने की कोशिश करें लोग, उनको दूर करें हम, इससे पहले कि हमारे ऊपर जो है कोई चीज इम्पोज की जाए। तो मैं समझता हूँ ये हो सकता है हम अपने हिसाब से कुछ करें, सोच समझ के। बड़े अच्छे खासे उलमा किराम दानिशवर को मिला के जो हमदर्द लोग हैं दीनी तालीम के, बड़े जो प्रोफेशनल लोग हैं, उनके साथ बैठ के एक हम लाए अमल बनाए, एक मंशूर बनाए, एक जो है आउटलाइन बनाए और वो गवर्नमेंट के सामने पेश करें। इसके बजाय कि गवर्नमेंट कोई चीज पेश करे, हम उनके सामने पेश करें कि हम ये चाहते हैं आपसे। ये एक नई बात, ये एक इकदामी सूरत होगी, वरना जो है आपको तो कभी ना कभी तो मानना ही पड़ेगा अगर कुछ खामियां रह गई हों और जिसका फायदा उठा के दुश्मन जो है आपकी मदाखल करना चाहेंगे। तो ये मैं कहना चाहता हूँ, जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाया करते थे, जो कौम अपने घर से बाहर नहीं निकलती है अपनी हिफाजत करने के लिए, उसको घर में ही गुलाम बनाया जाता है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि इससे पहले कि आदमी जो है वो उस चीज का शिकार हो जाए, हमें सोचना चाहिए, गौर फिक्र करना चाहिए चैलेंजेस क्या है। इंडिविजुअल मसाइल से निकल के हमें इज्तिमाई और कौमी और दीनी मसाइल पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। एक काउंसिल ऐसी होनी चाहिए लोगों की, स्कॉलर, उसमें उलमा और दानिशवरों को शामिल करना जरूरी है, क्योंकि इस वक्त ना उलमा ही दीन की पूरी खिदमत कर सकते और ना दानिशवरी कर सकते जब तक दोनों साथ मिलकर नहीं चलते हैं, क्योंकि दोनों के अंदर खामियां है। अब जो दानिशवर इस वक्त जो दीन का हाल कर रहे हैं, आपको पता ही है चैनल्स पर क्या हो रहा है। आदमी कहता है कान बंद करें, उसमें रोए ठूसे, ऐसी ऐसी बातें भी करते हैं लोग। दाढ़ी का इनकार हो गया, जो है ये जो हुदूद का इनकार कर रहे हैं लोग, और गैर मुस्लिम के साथ शादी का भी जवाब, एलजीबीटी का भी बाज लोग जवाब निकाल रहे हैं, क्या क्या बताएं। और फिर कुछ हमारे मौलवी साहब ऐसे भी है, हर आदमी मौलवी बना हुआ कि इंटरनेट उसके पास, तो ऐसे फतावा दे रहे हैं, ऐसी ऐसी बातें एक दूसरे के खिलाफ कह रहे हैं, तकलीफ होती है उससे। भाई मुसलमानों को तोड़ रहे हैं आप, उनके इतिहास को खत्म कर रहे हैं, कितना गुनाह कर रहे हैं हम लोग। तो ये सब चीजें जो है रोकने की जरूरत है। तो इसलिए हमें ऐसे दानिशवरों को देखना चाहिए, उनके साथ मिलना चाहिए, जो वाकई दीन की खिदमत करना चाहते हैं, हमदर्द है। और ऐसे उलमा जो संजीदा उलमा है, उनको मिलजुल के उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। तो मुझे अच्छी बात लगती थी अल्लामा इकबाल की। अल्लामा इकबाल ने अनवर शेख कश्मीरी को अपने मसाइल भेजते थे, सवाल पूछते थे उनसे जमाने के बारे में, नबूवत के बारे में। दानिशवरों को उलमा से बेनियाज नहीं होना चाहिए, और उलमा को भी दानिशवरों से बेनियाज नहीं होना चाहिए। एक ताल्लुक पैदा करना चाहिए, जैसे सुलेमान नदवी और इकबाल का ताल्लुक। अपने जमाने के सबसे बड़े शायर अल्लामा इकबाल, अपने जमाने के सबसे बड़े सीरत निगार सुलेमान नदवी, कैसा ताल्लुक था, अफगानिस्तान भी एक साथ जा रहे। और अनवर शेख कश्मीरी के साथ ताल्लुक जो इकबाल का था, ये ताल्लुक दोबारा पैदा होना है ताकि हम मिलत के लिए कुछ सोचें। और ये बहुत जरूरी है, और उनके मशवरों से बड़ा फायदा हो सकता है। ये जो आप माली मसाइल की बात कर रहे हैं, हमें कोई नया अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा माली मुश्किलात को दूर करने के लिए। मैं समझता हूँ कितनी मुश्किलात है, लेकिन उनको दूर करने के लिए कोई ना कोई हमें वसीला ढूंढना पड़ेगा, तरीका ढूंढना पड़ेगा, और इंशाल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक बार एक आलिम से कहा था कि हमारे यहाँ मिशनरी स्कूल काम करे, पैसा भी हमारा, बच्चे भी हमारा, जमीन भी हमारी, और उस पैसे के जरिए से वो दुनियाई तालीम हमारे बच्चों को देते हैं और ईसाई की तरफ दावत भी देते हैं। और हमने ऐसे मदारिस कायम नहीं किए जहाँ हम दुनियाई तालीम के साथ दीनी तालीम भी देते, ताकि हमारे बच्चे कम अज कम महफूज रहते। वो मुसलमान बच्चों को दुनियाई तालीम के जरिए से अपने दीन से जो है वाकफ कराते हैं, की तरफ मुतवज्जा करते हैं। और हम लोग जो है कहते हैं कि दुनियाई तालीम अलग है, दीनी तालीम, वो कहते हैं दुनियाई तालीम तो अलग है, लेकिन वो दुनियाई तालीम देते हैं हमारे बच्चों को, और उसके जरिए से ईसाई की तरफ रागब करते हैं। और हम लोग कहते हैं दुनियाई तालीम अलग है, दीनी तालीम अलग है, हम तो दीनी तालीम देंगे। और दुनियाई तालीम हमने किन के हवाले छोड़ी, मिशनरीज के हवाले।
और मिशनरीज का अपना एक मिशन है और वो मजहब का मिशन। तो मैंने उस आलिम से कहा, वो देवबंदी आलिम थे, मैंने उनसे कहा कि हजरत, आप तो कह रहे हैं कि सुबह सवेरे हमारे बच्चे जा रहे हैं ये जो है कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को दाखिल करने के लिए, और हमारे यहाँ वो बच्चे आते हैं जो किसी लायक नहीं होते, वो मदरसे के बारे में कह रहे थे। मैंने कहा गलती तो हमारी है। वो लोग जो कहते थे दुनिया अलग है, दीन अलग है, वो दुनियाई तालीम देते हमारे बच्चों को, और हम कहते दुनिया और दीन एक साथ है, हम उनको दुनियाई तालीम नहीं दे पाते, तो फिर उसका फायदा उठाते हमारे दुश्मन। जब वो कर सकते हैं हमारे पैसे के जरिए से, हमारी जमीनों में हमारे बच्चों पे दुनियाई तालीम के जरिए से दीन का काम, तो हम क्यों नहीं कर सकते कोई ऐसा इंतजाम कि दीनी मदरसों के साथ साथ हम एक दुनियाई मदरसा भी कायम करें, ताकि वहाँ बच्चे आए उनको हम दीन के साथ रोशनास करें, तो एक इम्तजाज पैदा करें दीनी और दुनियाई तालीम का। एक तबका ऐसा रहे जो सिर्फ दीनी तालीम में तखस्सुस पैदा करे, हदीस कुरान फिक्र, और उसमें वो आलिम बन जाए। और दूसरा उसी के साथ हमारा एक स्कूल भी हो जहाँ पर दुनियाई तालीम पे ज़्यादा जोर हो, लेकिन उसके साथ दीनी तालीम भी हो, तो एक सिलसिला खड़ा, उससे वो आमदनी का जरिया भी बनेगा वो, और उससे हमारे पास पैसा भी, हमारे बच्चे बचेंगे भी दीन के इर्तिदाद से दीन में। और दूसरा तरफ हम पैसे हमारे पास आए, जब जैसे जब वो पैसा देते हैं दूसरे इदारों को, हमारे इदारों को दे देंगे, हमारे इदारों को दीनी लिहाज से भी उससे फायदा होगा, और बच्चों को इर्तिदाद से बचाया भी जा सकता है। तो इस तरह हमें एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो उसमें हमें उन लोगों को शामिल करना पड़ेगा जो माहिर इक्तिसादियात, बिल्कुल फनी रिजाल वाला मामला होता है। हर जमाने में लोग तखस्सुस रखते थे, वो हमें बेहतरीन मशवरा दे सकते हैं। हम ये नहीं, हर चीज को नहीं समझ सकते, ये कहना कि हम सब जानते हैं गलत बात। तो इसलिए थोड़ा सा उनके मशवरों से अगर वो नजदीक आएंगे हमारे, इंशाल्लाह हम ऐसे मशवरे देंगे हमको, नए नए जराए आमदनी के पैदा किए जा सकते हैं, और हम दुनियाई और दीनी तालीम के लिए ऐसे उलमा को पैदा कर सकते हैं जो दोनों का जो है इम्तजाज हो। उनके पास दीनी तालीम भी इतनी ज़्यादा है, दुनियाई तालीम भी इतनी है जितनी चाहिए। कुछ लोगों के पास दीनी तालीम इतनी ज़्यादा हो कि वो दुनिया के बारे में भी कुछ बुनियादी तालीम हो, और कुछ लोगों के पास दुनियाई तालीम इतनी ज़्यादा हो और दीन की तालीम भी हो। तो तखस्सुस पैदा किया जाए और सबसे काम लिया जाए, और हर फन के उलमा को तैयार किया जाए, जैसे शाहुल्लाह दहलवी रहमतुल्लाह अपने ज़माने में किया था, गजाली के ज़माने में हुआ था। हर ज़माने में हो सकता है, आज भी हो रहा है, जहाँ पर कोशिश हो रही है, यहाँ पर देखिए आप मलेशिया में, बाकी जगह, तुर्की में मैंने अर्ज किया, मुइज़्ज़ुज़्ज़मान नूरसी के ज़माने में। तो हम दूसरे ममालिक के मॉडल से फायदा उठा सकते हैं। और एक बात मैं अर्ज करना चाहूंगा, ये जो बदियुज़्ज़मान नूरसी ने फरमाया है ना, कि हमें तीन चीजों पर सतह पर इल्म का काम करना चाहिए। एक जाविया, या वो हो गया मतलब रूहानी तालीम, दूसरा मदरसा और मकतबा, दुनियाई दीनी और रूहानी तालीम को जमा करना। ये उन्हें नजरिया दिया था कि मदरसा ज़ोहरा का, कि यानी एक वो खुद भी आलिम थे, और उन्हें कहा जदीद तालीम को भी हमें पढ़ना चाहिए। तो एक नया मॉडल दिया, और उस पर मैंने बाकायदा एक मजमून लिखा है, तो कभी मैं इंशाल्लाह उस पर बात ही करूँगा, मदरसा ज़ोहरा का मॉडल क्या है। और फिर मैंने एक पूरा मॉडल दिया है, ये जो इसमें राजीव फारूकी है, और मौलाना मौदूदी ने भी लिखा था कुछ, और बाकी जो बदियुज़्ज़मान नूरसी और सर सैद, इन तीनों का मुकाबला करने के बाद मैंने साबित करने की कोशिश की हम कैसा मॉडल पेश कर सकते हैं दुनियाई और दीनी तालीम का। तो मेरे ख्याल में हमें इन चीज़ों पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम करने चाहिए, गौर फिक्र करना चाहिए। अभी तो हमारा गौर फिक्र का स्टेज है, उसमें टाइम लगेगा, लेकिन शुरुआत करनी है, और अच्छा है आप कर रहे हैं, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं, आपसे सवाल कर रहे हैं, नई नई ख्याल सामने आ रहे हैं, कुछ ना कुछ शुरुआत तो हो रही है। शुरुआत तो इल्म से होगी, जब आदमी कमजोर होती है कोई कौम, तो इल्म से शुरू होता है, जब ताकतवर होती है तो ताकत से शुरू होता है। तो हम इस वक्त कमजोर है, और कमजोर का सबसे बड़ा हथियार दावत और इल्म होता है। अगर कमजोर लोग उस वक्त ताकत का इस्तेमाल करने लगे तो और खत्म हो जाएंगे, जिस वक्त इस वक्त हालत हमारी है। इल्म और तालीम हमारा हथियार होता है उस वक्त जब हम कमजोर होते हैं। और इल्म और तालीम के जरिए से बेदारी पैदा करनी होती है, और बेदारी पैदा हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह ये कौम बेदार हो जाएगी। न हो नामीद नामीद की नामीदी जवाल इल्म और इरफान है, उम्मीद मर्द मोमिन खुदा के राज़दानों में। तो मायूस तो बिल्कुल नहीं हूँ मैं। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह रहमान हमारा शायद सानिया होगा, लेकिन उसके लिए हमें कोशिश करें, कुछ लोगों को चराग जलाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। आखिरी सवाल ये है कि चूँकि मदरसा डॉट पी के प्लेटफॉर्म से ये इंटरव्यूज़ नशर किए जा रहे हैं, तो मदरसा डॉट पी के का विजन वो ये है कि तमाम मकातब फ़िक्र को एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, कि वो अपने फ़िक्र का मकतबा उसको बाकी रखते हुए, जो इल्मी इख्तलाफ है उसको बाकी रखते हुए, जो मुश्तरकात हैं, कामन चीज़ें हैं, उनके ऊपर वो आ जाएँ, और सबसे पहले इल्मी रिगर पैदा कर लें, इल्मी रसूख पैदा कर लें। इसके लिए जो मदरसा डॉट बी के कर रहा है, रिकॉर्डिंग के साथ साथ, उनके असबाक की रिकॉर्डिंग करने के साथ साथ मदारस में तरबीती वर्कशॉप्स हो रही हैं, और तकरीबन 1 साल हो चुका है, तो हम तकरीबन 1000
علماء اور عالمات کو ٹریننگ دے چکے ہیں جو ٹیچر ٹریننگز ورکشاپس ہیں، اور اس میں ہر مکتبہ فکر کے اندر ہمارے پاس ٹرینرز کی ٹیم موجود ہے، اور اس مکتبہ فکر میں وہ جا کر وہ ٹریننگ دے رہے ہیں۔ ہماری ورکشاپس کا سلسلہ مدارسہ.pk کی سطح پہ چل رہا ہے۔ ساتھ ہی ہمارا اسلامک اسٹڈیز کا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں ہم مدارس کے گریجویٹس کو یونیورسٹیز کی طرف بھیج رہے ہیں، اور جو ان میں سے استطاعت رکھنے والے ہوں ایم فل اور پی ایچ ڈیز ان کو کروا رہے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ شعبہ کے آپ جیسے دانشوروں کی گفتگو کو ریکارڈ کر کے مدارس تک پہنچا رہے ہیں کہ اس سے اگر کوئی فائدے کی چیز نکلتی ہو۔ تو ادارے کے ان سارے انیشیٹوز کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ تو وقت کی ضرورت ہے، اور ہم بھی اپنے حساب سے بہت دنوں سے اسی پہ سوچتے رہے ہیں اور کام بھی تھوڑا کرتے ہیں، تو میرے خیال میں اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اگر ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں اس کے بغیر میں نے پہلے آپ سے کہا نا کہ دین کی فکر بارہ علماء بناتے ہیں، دانشور نہیں بنا سکتے، چاہے کتنے وہ سیاستدان بھی نہیں بنا سکتے۔ اگر ہماری مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے تو وہ علماء کے ذریعے ہو سکتا ہے، اور اس چیز کا اگر ہمیں احساس ہو جائے تو یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہماری مسئولیت کتنی ہے ویسے عالم۔ یہ نہیں کہنا کہ 6% ہمارے پاس آتے، نہیں، آپ کے پاس سب آتے ہیں، پھیلنی آپ ہی کی فکر جو ہے حاوی ہو جائے گی انشاءاللہ، اسی کو لوگ اپنا معیار بنائیں گے، دانشور کی نہیں بناتے۔ تو اس لیے اگر یہ اس طرح سے کام ہو جائے گا، ایک مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے گا، علماء اور دانشوروں کا رابطہ شروع ہو جائے گا، ایک نئی سوچ، ایک نئی فکر پیدا ہو جائے گی، ایک نئی صبح کا آغاز ہوگا انشاءاللہ، تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہی طریقہ کار ہے، باقی کوئی طریقہ کار نہیں۔ باہر سے ہم کچھ کریں گے کچھ نہیں ہوتا ہے، اندر سے ہمیں اپنا کچھ ٹھیک کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ اسی طریقے سے ہماری اس امت کا آخری حصہ ٹھیک ہو جائے گا جس سے پہلا والا ہوا تھا، جیسے امام مالک فرمایا کرتے، تو وہ علم سے ہی ہوا تھا، اور جب علم کا تعلق قطع ہو گیا ہماری زندگی سے، پھر یہ سب خرابیاں پیدا ہو، پھر ایسے لوگ سامنے آ گئے جنہوں نے گمراہ کرنا شروع کر دیا لوگوں کو، ان کا علم بھی اتنا نہیں تھا، تقویٰ بھی اتنا نہیں تھا، اور پھر رسوخ بھی نہیں تھا ان کو، اور جن کے پاس علم کا رسوخ تھا ان کی پہنچ نہیں تھی لوگوں تک، تو نتیجہ یہ نکلا کہ جہالت کا دور دورہ ہوا، اور لوگوں نے توہم پرستی اور شخصیت پرستی اور مسلک پرستی اور فرقہ پرستی اور علاقہ پرستی کو فروغ دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ملت کا جو جسم جو ہے مزمحل ہوا، اور ہم اس حالت میں آ گئے کہ تمام دنیا کی قومیں ہمارے اوپر حملہ آور ہوئی، اور ہم اپنا دفاع بھی نہیں کر پا رہے، جبکہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، مظلوم ہو کر بھی ہم محکوم اور پریشان ہو گئے، اور جو ظالم ہے وہ اپنے آپ کو مسلح بنا کے پیش کرے دنیا میں۔ ہمارا کیس بہت مضبوط ہے لیکن ہمارا وکیل بہت کمزور ہے، ان کا کیس بہت کمزور ہے لیکن ان کا وکیل بڑا مضبوط ہے۔ ہمارا وکیل تو عالم تھا، ہمارا وکیل تو اسکالر تھا، لیکن وہ اسکالرس کو پتہ ہی نہیں میرا کیس کیا ہے، کیس کو کیسے لڑنا ہوتا ہے، آج کا منہج کیا ہے، بحث کیسے کی جاتی ہے، آج کا طریقہ ریسرچ کیا ہوتا ہے، وہ پتہ ہی نہیں اس کو۔ سائنس والے کیسے سوچتے ہیں، فلسفے والے کیسے سوچتے ہیں، آج کا فلسفے کا کیا حساب کتاب اس کو پتہ ہی نہیں، تو وہ کیس لڑنے جاتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں کیا لڑنا ہے، کیسے آرگو کرنا ہے، وہ مذہب کا، وہ فلسفے کا جواب مذہب سے دے رہا ہے، وہ سائنس کا جواب مذہب سے دے رہا ہے، تو اس لیے نہ مذہب والے ماننے کے لیے تیار، سائنس والے ماننے کے تیار، نہ فلسفہ والے۔ جب تک وہ امام غزالی کی طرح فلسفے کا جواب فلسفے کا دے تب تک وہ مذہب کی بات نہیں، تو اپنے زمانے کے علوم پر اس کو ایسی دسترس ہو کہ لوگ کہیں یہ تو ماسٹر ہے، پھر اس کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو میرے خیال میں یہ جو آپ کام کر رہے ہیں بہت ہی اہم کام ہے، اس کو آپ جاری رکھیے، اور میرا پورا تعاون جب بھی آپ کو چاہیے، آپ کو انٹرو کرنا چاہیے کچھ بھی، تو انشاءاللہ میں پورا تعاون کروں، اور یہ میرے دل کی بھی آواز ہے کہ ایسا کام ہونا چاہیے، اور اس کا بہترین وقت آیا ہے۔ اس پہ میں ختم کروں گا، جیسے وکٹر ہکو نے کہا ہے، نتھنگ از ایز پاور ایز دا ایڈیا whose age has come۔ کوئی چیز اتنی طاقتور نہیں ہوتی اس خیال سے جس کی عمر آ چکی ہو، جس کا زمانہ آ چکا، اور یہ زمانہ آ چکا ہے، اب ہمیں اس طرف دھیان دینا چاہیے، اس کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے، اس مشن کو، اس دعوت کو، تاکہ مائنڈ سیٹ پیدا ہو جائے، ایک ہمہ جہتی، ایک یعنی حاوی کل تصور علم جو ہے، جس میں دنیا دینی علوم کو ہم جمع کر سکیں دینی تعلیم کی روشنی میں، اور ایک نیا منہج ہم مغربی علوم کے مقابلے میں، غیر اسلامی علوم کے مقابلے میں کھڑا کر سکیں، اور پھر اسی کی بنیاد پہ یونیورسٹیز بنے، کالجز بنے، اسکول بنے، جہاں ڈومیننٹ رول جو ہو دینی منہج کا ہو، اور اس کے ساتھ دنیائی تعلیم کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے۔ جزاکم اللہ خیرہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا، اور انتہائی اہم پوائنٹس کے اوپر آپ نے مدارس کے فوائد کے لیے اور مدارس کو مزید آگے فیوچر میں بہتر سے بہتر کارکردگی دکھانے کے حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی، اور انشاءاللہ وقف کا جو سسٹم اور زکوٰۃ کے حوالے سے جو ہوگا تو یہ آپ کا ایک مستقل انٹرویو اس کا متحمل ہے۔ انشاءاللہ ہم زندگی رہی تو آپ کا ایک اور انٹرویو اس پورے ٹاپک پہ کریں گے، تاکہ مدارس کو ایک ماڈل مل جائے، اور جو ان کا ایک بہت بڑا مسئلہ اس وقت بنا ہوا ہے اس سے وہ اپنی جان
کیسے چھڑا سکتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ یکسو ہو کر سارے نظامات تعلیم کو اپنے ادارے میں شروع کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کے اوپر ایک مستقل انٹرویو درکار ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔